Good evening, everyone. My name is Sheikh Habibullah. I have secured rank 189 in my UPSC 2022. UPSC 2022, uh, and I have been allotted Indian Police Service, and I am presently posted in Kolkata Training Academy, State Training Academy. Uh, then we are heading towards our phase 2 of training, second phase of the training. So presently I'm in Kolkata. So coming to the journey, coming to the preparation and the aspects around the UPSC preparation, I am a veterinary doctor by profession. And then in 2019 I passed out in bachelor's in veterinary sciences and animal husbandry. From then I have started preparing for the UPSC from 2020. I have given one attempt I have given from the college, after my college, and then I have given two serious attempts. And in the first attempt, I have not cleared the prelims, and in the second and third attempts, I have cleared the. In second, that is like third attempt, I have cleared the examination. So I would like to divide my talk on UPSC in basic things, let's say as a prelims, mains, and interview. I would divide that, and before that, I would say the motivation and the thought for the UPSC. I would say the thought for UPSC was always there with me when I was in graduation. I had this thought of preparing for the UPSC. So I thought that the UPSC would give me a career which would always have a which can always have a diversity of the work along with the sense of satisfaction in serving the people. And the second motivation I had was obviously for the reasons that in any job we always find a kind of we always find try to find a kind of interesting thing and some motivation that always keeps us driving. सो मेरे लिए तो वही था कि जो भी जॉब में हम जा रहे हैं तो उसको वो ऐसा जॉब होना चाहिए कि वो दिन में तुम्हें चैलेंजेस भी दे, तुम्हें डाइवर्सिटी ऑफ वर्क भी दे, एंड एट द सेम टाइम उसमें अपना एक पोटेंशियल रियलाइज़ करने का स्कोप भी हो, और at the end of the day you should sleep with the sense of satisfaction that you have done something in this on that day for the people. So on this regard, and secondly for the economic and also the financial security concern, UPSC and for that matter any civil services job, like any service, IAS, IPS or anything, central services, they offer you a great income security. They offer you great perks which will not make you feel to think about something else or always ponder upon catering to your comforts. Rather you can focus your energies, your potential on utilizing and unleashing your potential for the job. So this was the second thing that has driven my motivation. And the thirdly I would say UPSC offers you a platform where you can actually give back to the society. And you may be feeling a jargon to use a word that is giving back to the society, because ultimately people have a perception that aspirants prepare for UPSC just because of the power associated with it and with the grandeur associated with it. But it's not always the case. I would say maybe it might be in the initial initial days, but it doesn't count when you go in the course of time in your service. You will eventually feel that you have a greater responsibility, because with a great power you get the greater responsibility. So I would say UPSC is such a job which has responsibilities
unmatched responsibilities and unparalleled respect that you will earn in this job. And the second aspect which I wanted to focus is on the uh, daily schedule which I used to follow. So here I would not want to comment on number of hours और कितने कितने घंटे कैसे पढ़ना है वगैरह से ज़्यादा I would say there would be some efficient hours. First thing is UPSC is a kind of marathon type of preparation because the process of examination would itself take nearly 1 year. So you cannot expect that today, this week or this month I will study very hard and then मैं बाकी टाइम थोड़ा बहुत मैं रिलैक्स हो जाऊंगा. ऐसा वाला सीन यूपीएससी में होता नहीं है. यूपीएससी बिकॉज एज यूपीएससी इज़ अ लॉन्ग मैराथन. सो you would always have the thing that कि तुम्हारे पास लॉट ऑफ टाइम के साथ में फोकस करने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो इसके लिए अपना प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए विच इज़ सस्टेनेबल, विच इज़ कंसिस्टेंट. बोथ इट शुड बी सस्टेनेबल एंड ऑल्सो इट शुड बी कंसिस्टेंट. सो जितने दिन भी तुम पढ़ रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन वो बहुत ही अच्छा पढ़ लिए और एक दिन तुम बिल्कुल नहीं पढ़े हो. ऐसा वो होना नहीं चाहिए. सो ऑब्वियसली तुम्हारा ऐसा शेड्यूल बनाओ, इट शुड नॉट बी ऑन द आइदर एक्सट्रीम्स. बहुत ही बिजी नहीं होना चाहिए और बहुत ही फ्री भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इट शुड गो ऑन. सो मेरा ऐसा होता था शेड्यूल कि मैं मंडे टू सैटरडे एक शेड्यूल फॉलो करता था एंड संडे आई यूज टू टेक नियरली 3/4 और हाफ डे एज अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ. तो आप इफेक्टिव आवर्स 6 to 8 आवर्स रखना चाहिए जब आप पीस टाइम में है. मतलब आई वुड से एग्ज़ाम के एग्जैक्टली 1-2 मंथ्स के पहले. जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर प्रीलिम्स के 2.5 to 3 मंथ्स के पहले आई वुड से इट्स अ वॉर टाइम. मेंस का तो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम होता है 2 महीने, वो भी तो वॉर टाइम है. बाकी जो पीस टाइम होता है उसमें यू हैव टू स्पेंड 6 to 8 आवर्स. 6 to 8 आवर्स अपने you have to put it for preparation, जिसको ना you should actually divide it in a very well mannered. जैसे कि हाँ, अगर आप प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपका प्रिपरेशन ऑफ 8 आवर्स मान लो पर डे. तो 8 आवर्स में 40% ऑफ द टाइम शुड बी गिवन टू द ऑप्शनल. बिकॉज ऑप्शनल, आई वुड ऑलवेज से इन माई टॉक्स दैट ऑप्शनल इज़ लाइक I would say optional is like it is on a funnier side. Many of my mentors and I've even heard this from many people. Option is like arranged marriage. So once if you are married to someone, you have to spend time with them because they are with you all along. So उसी तरीके में ऑप्शनल ऐसा चीज़ है कि वो तुम्हारे प्रिपरेशन में की पॉइंट है, तुम्हारे प्रिपरेशन में मेजर रोल प्ले करेगा. एट द सेम टाइम इट एक्चुअली डिसाइड्स योर रैंक. So when your rank is being decided or your service is being decided with the optional के marks की वजह से तुम्हारा इतना कुछ decide हो रहा है, तो you have to spend 40% of the time. Though if you feel that I have enough read this thing, I have enough revised the thing, but still there is always something to improve. So you should always feel कि ऑप्शनल में मुझे 40% देना ही देना है. एंड देन कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द 60% टाइम में आप 40% GS को दे सकते हैं और बाकी जो 20% होता है, आई थिंक इन द प्रेजेंट सिनेरियो फॉर द पीपल हु फेस डिफिकल्टी इन द CSAT, you have to give these 20% of the time to the CSAT, because CSAT has become such an important aspect that even if you are well versed with the GS subjects and even if you are very good at the GS subjects, and you may get shattered because if you don't clear the CSAT, all the effort you have put in the GS, all the answer writing scripts you have done and all the मेहनत जो तुम किए हो, ये सारी चीज़ें काम में नहीं आती है. बिकॉज अब जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पाते हो तो यू आर नॉट हैविंग अ चांस टू सिट फॉर द मेंस. तो when you don't have a chance to sit for the mains, तो फिर आप कितना पढ़े हो, क्या करना है, सो इसका क्या ही यूज़ हो जाएगा. सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट थिंग. सो इसलिए क्या है कि ऐसा टाइम डिवाइड करना है. ये डेली शेड्यूल का मैं बोलूँगा. एंड देन
coming to the prelims, the first stage of the exam. So there is a standard book list जो हर इंसान, हर एस्पिरेंट यूज़ करता है. उसमें कुछ नई नहीं है. ज़्यादा अब नया करने की कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें बात यही होता है कि जो सब पढ़ते हैं वो लेवल पे अब सबको आना है. उसके बाद में जो चीज़ है, that depends upon your smart work, that depends upon your notes, that depends upon your other skills which you utilize for clearing the examination. But for the bare minimum of basic जो चीज़ है पास करने के लिए, जो क्लियर करने के लिए, वो तो यही है कि आपको यू ऑलवेज हैव दैट चांस, कि तुम्हें इतना तो कंप्लीट करना ही करना है. उसके बाद में ही जो चीज़ है, तो मैं ये जो बेसिक बुक लिस्ट है वो बोल के मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इट्स मेनी टाइम्स सेट बाय मेनी टॉपर्स एंड इट्स वन एट द सेम. एंड आई हैव इवन पोस्टेड द डिटेल्ड बुक लिस्ट इन माई इंस्टाग्राम story highlight of UPSC. So coming directly to the preparation, I would say प्रीलिम्स ऐसा पेपर है जो तुम्हें सिर्फ 10 मिनट में फेल कर सकता है. जैसे अगर आप मेंस की बात करते हैं, यू एटलीस्ट नीड एक पेपर 3 घंटे का होता है, ऐसे आपके पास 9 पेपर होते हैं. ठीक है, 4 GS, 1 एस्से, 5 हो गए, और 2 ऑप्शनल के 7 हो गए, और 2 लैंग्वेज के. तो 9 पेपर में 7 पेपर भी अगर आप इम्पॉर्टेंट मानते हैं, 7 3 जा, एक 3 आवर्स का होता है, तो 7 3 जा यू हैव मोर देन 20. ओके, तो जब आपके पास इतना टाइम होता है, तो इतना टाइम 20+ आवर्स का टाइम होता है, तो उसमें आप कुछ गलत करके लिस्ट में नहीं आने के लिए एटलीस्ट देयर शुड बी 1 to 2 minimum of 2 hours of your bad writing, or 2 hours of your mistaken writing, or 2 hours of your malfied to fail. Otherwise it's not easy कि if you are a good student and failing in the mains is not that prevalent thing. But in prelims, though if you are a good student, though if you are a very bright student who knows everything, who gets good score in the test series, इसके बाद में भी अगर आपके 10 मिनट भी ख़राब हो गए, अब अगर 10 मिनट भी पैनिक हो जाते हैं, तो आपका प्रीलिम्स फेल होने का चांस होता है. बिकॉज गिवन द 2 hours 100 क्वेश्चंस, तो आप रफली हम लोग देखा जाए तो उसमें वही हो जाता है कि आपके पास ये एस्पेक्ट ऑफ डूइंग मिस्टेक एंड करेक्टिंग इट बहुत ही कम हो जाता है. तो आप उतना कम टाइम में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस भी करना है, जो लेफ्ट ओवर आंसर्स भी करना है, तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है. तो पैनिक नहीं होना एंड ऑल्सो टू गिव प्रीलिम्स विद अ श्योर कॉन्फिडेंस नीड्स लॉट ऑफ रिविजन. फर्स्ट थिंग आई विल से कि आपके आई विल गो स्टेप बाय स्टेप फॉर द प्रीलिम्स. तो फर्स्ट थिंग ये है कि प्रीलिम्स में आप ऐसा करना चाहिए कि अपना टाइम जो है, अपना टाइम को प्रॉपरली प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करना है. सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी वाइज, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी में पहला ये पहले सब्जेक्ट्स आते हैं एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक. इन दोनों के जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने तो बाकी किसी सब्जेक्ट के नहीं होते हैं. तो ये दोनों को टाइम गिविंग में प्रपोर्शनेट देना चाहिए, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए. तो इसके बाद में आता है देयर आर 2 to 3 सब्जेक्ट्स जिसके क्वेश्चंस आपको गलत करना ही नहीं है. जैसे हो गया पॉलिटी, जैसे हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, जैसे हो गया ज्योग्राफी. ये 3 इतने स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं. पहले इसमें हिस्ट्री भी हुआ करता था, बट नाउ डेज हिस्ट्री हैज़ बिकमिंग वेरी डाइजी सब्जेक्ट because in prelims because they have been asking the questions from the very distant and remote sources, जिससे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी कभी कभी उसको टफ फील करते हैं. तो मैं इसमें हिस्ट्री नहीं काउंट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी. So these three subjects will nevertheless count near to 30 to 40 questions, और ये questions आपके master hold होना चाहिए. So these questions you should clear these questions in such a manner that the error should be very less. So if you are confident in these 30 to 40 questions, so then you have a greater element of questions getting right in your hand. तो आपका प्रिपरेशन भी उसी तरह से होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के इतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आप इन चीज़ों में गलत होए ना.
ठीक है। तो फिर सेकंड चीज़ होती है कि जो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट इतना डायनामिक सब्जेक्ट है जिसके ना थोड़े ही बेसिक्स होते हैं और ज़्यादातर इसका करंट अफेयर में और कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स में इसका रोल है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप इसका जो बेसिक है, जैसे मैं एनवायरनमेंट के लिए पीएमएफ रेफ़र किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई हैव रेड दिस ओनली आईएएस का साइंस एंड टेक का कंपाइलेशन, फोरम का साइंस एंड टेक का कंपाइलेशन। इसके बाद में आपको करंट अफेयर्स और द करंट हैपनिंग्स के ऊपर साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में खास करके बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से ही आते हैं। तो जब दीज एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक एड्स नियरली अबाउट 25, यहाँ पे एक 40, 25, 65 अराउंड क्वेश्चंस इसी से आते हैं। अब चाहे बाकी क्वेश्चंस जो हैं तो 30-35 अराउंड क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, मैपिंग के आते हैं। तो अपना स्ट्रैटेजी भी उसी तरह से होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा पूछते हैं तो उसका आपको क्लैरिटी होना चाहिए। तो सेकेंड, दिस इज़ द फर्स्ट कि कैसे पढ़ने का तरीके में। तो आई विल नॉट रिपीट मैनी थिंग्स विच ऑब्वियस टॉपर्स से, तो आई विल ट्राई टू गिव यू दैट काइंड ऑफ इंसाइट्स जिससे आपका हर बार जो 10 मार्क्स से या 20 मार्क्स से आपका प्रीलिम्स रह जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो जैसे मैं 2021 का अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरे 67 मार्क्स थे प्रीलिम्स में। उस टाइम पे कट ऑफ वाज नियरली अबाउट 77 और समथिंग, वेयर आई मिस्ड द कट ऑफ बाय 10 मार्क्स। तो लेकिन बट वो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में बिकॉज ऑफ कोविड। नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, वो जून में या मई के एंड में हुआ था, विथ लेस टाइम। मई में 5 महीने और यहाँ पे 2-3 महीने ही थे, लेस टाइम। बट माई स्कोर हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड फ्रॉम 67 to 116। तो इसका रीज़न मैं नॉलेज तो कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा नॉलेज इतना ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ था इतना कम टाइम में, बिकॉज आई इवन गिवन दैट टाइम टू द मेंस। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में मैंने क्या किया को जिसका मेरा नियर अबाउट 40 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट रहा है। तो इसका यही मुझे लगा कि प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट्स को, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। जैसे अभी तक मैं उसी की आई हैव इवन टोल्ड अबाउट द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन दैट रिगार्ड। दैट इज अ स्पेसिफिक थिंग विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज वंस यू आर नॉट क्लियर अबाउट द प्रायोरिटी कि किसको कितना देना है, तो यू गो टू द प्रीलिम्स पेपर एंड देन यू जस्ट बिकम पैनिक कि यार मैं तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा पढ़ के आया था, यहाँ पे तो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, पूरे तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के ही आ रहे हैं। ये तो मुझे लगा था कि ये एक आध क्वेश्चन आएगा या तो फिर इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैंने गलत कर दिया। ऐसा नहीं होता है। तो यू हैव टू गो विद द प्रायोरिटी। सेकेंड थिंग ये है कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको कैसा रहना है, माइंडसेट। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूसली 20 भी क्वेश्चन आपके नहीं जानने वाले आते हैं ना, यू शुड होल्ड योर नर्व्स, बिकॉज यू शुड ऑलवेज टेल टू योर सेल्फ कि आप इतना मेहनत किए हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये किसी और से भी नहीं होता होगा, क्योंकि तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो इस यूपीएससी के, एंड देयर माइट बी सम अदर सीरियस एस्पिरेंट हु विल बी आल्सो फेसिंग द सेम थिंग। सो इस हिम्मत इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस करेज एक्चुअली हेल्प्स यू to navigate the toughest aspects of the prelims paper. So solve the things which you are very well comfortable with. If I used to follow this strategy कि मैं पहले पेपर में प्रीलिम्स का पॉलिटी ढूंढता था, क्योंकि मुझे पॉलिटी अच्छा आती थी ऐसा मुझे लगता था। तो फिर मैं पॉलिटी का क्लियर कर लेता था, तो उसमें 10 में से मेरे 6-7 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर गुड एट सम सब्जेक्ट। सो ऐसा करके मैं पॉलिटी पहले करता था, ज्योग्राफी करता था, इकोनॉमिक्स करता था। इसमें मेरे पास ना 35-40 क्वेश्चंस में 25 अराउंड हो जाते थे। इसकी वजह से क्या हो जाता था कि एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि अरे चलो एक 30% ऑफ द पेपर तो अपना हुआ है। फिर देन गो टू योर कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। ऐसा जाके ना व्हेन यू डू 50 to 55 क्वेश्चंस इन द वन गो, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक 50 क्वेश्चन तो मेरे हाथ में है, बाकी मुझे एक 35 क्वेश्चंस में लगाना है कि थोड़े में मेरे 50-50 होंगे, थोड़े में मेरे रेशो कम हो जाता है, 3:1 में भी हो जाता है। तो ऐसा अपना फोकस ना पेपर जो वेरी स्ट्रांगली अपना माइंड को कंपोज्ड, कॉम और फर्म रखता है, वो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करता है।
सो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो लोग एक बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में लगातार प्रीलिम्स क्लियर करते जाते, और जो लोग एक बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर करते तो वो लगातार फेल होते जाते। इसका यही रीज़न है। एक बार जब इंसान प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है देन ही एक्चुअली हैज़ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो बहुत बहुत अच्छे से प्रीलिम्स क्लियर करता जाता है। तो थर्ड थिंग आई वांट टू कम टू PYQs। आई वुड से कि जो मैं उस अटेम्प्ट में मुझे 40 मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स का जो इम्प्रूवमेंट हुआ था उसमें मैंने मेजर रोल PYQs को दूंगा, क्योंकि जब पहले तक मैं ऐसा करता था कि मैं टेस्ट सीरीज उठा लाता था। मैं ऑलवेज आई यूज टू पॉन्डर एट द थॉट दैट कि विच टेस्ट सीरीज इज गुड इन द मार्केट, आइदर इट्स रिवीजन, वाजीरोम, ऐसा था। लेकिन ऐसा बात है ही नहीं, क्योंकि ना सब टेस्ट सीरीज एक ही तरह के होते हैं और दैट सूट्स देयर कोचिंग पर्पस। बट आई वुड से यू कैन डू द टेस्ट सीरीज ऑफ कोचिंग, बट डोंट डू 1 मंथ बिफोर द एग्जाम। 1 मंथ के पहले अपना रिवीजन का लेवल पता करने के लिए आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ पढ़ लिए, ओशनोग्राफी पढ़ लिए, ओशनोग्राफी का एक सेक्शनल पेपर ले लो टेस्ट सीरीज और वो कर लो, उसको वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम कितना पढ़े हो और उसको कितना रीजनरेट कर पा रहे हो, इस चीज़ को पता करने के लिए यू कैन रेफर दीज टेस्ट सीरीज, बट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन देम फॉर योर मॉक। तुम्हारे मॉक प्रीलिम्स के लिए यू शुड ऑलवेज डू PYQs। आप एग्जाम के 20 दिन पहले हर दिन एक पेपर ले लो, 2013 या 11 से लेके 24-25 तक जो भी है तब तक का एक पेपर ले लो, और हर दिन एक पेपर प्रीलिम्स एनवायरनमेंट में सॉल्व करते रहो। और उसका एनालिसिस ऐसा करना चाहिए कि इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसका थीम आइडेंटिफाई करिए और वो थीम के अराउंड पढ़ना चाहिए। दिस इज़ PYQ एनालिसिस। उसके बाद में ऑप्शंस को भी एनालाइज करना चाहिए कि इस ऑप्शंस क्या है, क्योंकि इस साल का ऑप्शन नेक्स्ट साल का क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट साल का क्वेश्चन उस नेक्स्ट साल का ऑप्शन बन सकता है, or anything associated with it. So this is very important. These 3 things I will tell in prelims, and I don't want to extend this session unnecessarily by repeating the things which all everyone say. मेंस में आ जाता हूँ। मेंस में I would say मेंस is a marathon always। तो इसमें ऐसा है कि GS1, essay और ethics, ये पेपर्स ऐसे हैं जिसमें आप डिफरेंस ला सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि GS1 में देर इज़ अ मार्जिन फ्रॉम 90 to 125, 130 तक जा सकते हैं। GS2 में ये मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, GS3 में तो और कम हो जाता है। GS4 भी वैसा ही है, 80 स्कोर से लेके 130 तक जा सकते हैं। मेरे खुद के GS4 में 129 है। सो एंड आई वुड से ऐसे इज ऑल्सो द सेम थिंग। ऐसे 80-90 से लेके 140 तक लोग लाते हैं, तो आपको डिफरेंस लाने वाला एस्पेक्ट यही है। तो आप इस पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आपका आ गया कि आप UPSC का कोर्स ले लो, कोर्स आउटलाइन मतलब आई मीन टू से सिलेबस ले लो, और आप उसका एक एक पॉइंट देखो। उस एक एक पॉइंट के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए, आप उसी को बार बार पढ़ना चाहिए। और आपका स्टैंडर्ड सोर्स में अगर आपको ये टेस्ट सीरीज देते हैं, आपको कुछ एक फॉर एग्जांपल समझो आप एक टाइटल है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, अब इसके बारे में आपके पास एक स्टैंडर्ड 2 to 3 पेजेस का नोट्स होना चाहिए। अब आप उस क्वेश्चन के ऊपर एक टेस्ट सीरीज लिखे हैं और उसमें एक मॉडल आंसर में कुछ नए चीज़ें आए, उसको ले जाके आपने स्टैंडर्ड सोर्स में ऐड करना है, लेकिन अब सोर्स नहीं चेंज करना है। तो आपका ये स्टैंडर्ड सोर्स को इतना स्ट्रांग बनाते जाना है आफ्टर मेनी टेस्ट सीरीज, आफ्टर मेनी डिफरेंट सोर्सेज, आफ्टर करंट अफेयर्स। आप इसको वैल्यू एडिशन करते हुए अपना एक स्टैंडर्ड सोर्स को बहुत ही स्ट्रांग मजबूत करना चाहिए, कि ताकि तुम्हें उस जो स्टैंडर्ड सोर्स आपका जो है वो सोर्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यू शुड नॉट बी वेटिंग फॉर एनी अदर सोर्स टू स्टडी। और आपका कभी भी कुछ मार्केट में नया निकल जाता है तो आपके अंदर से एक तरह का फियर नहीं आना चाहिए। सो दिस फॉर्म्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली आई वुड से आंसर राइटिंग के बारे में तो मैं ये बोलता हूँ कि दिन में एटलीस्ट 2 to 3 आंसर्स लिखो। और देर आर मैनी मॉडल आंसर्स की, जैसे शून्य है, दृष्टि है, दीक्षांत वगैरह भी है आई गेस या, तो उनके जो एक मॉडल आंसर्स है, तो मॉडल आंसर्स को से अपना कंपेयर करिए, कितना % आप मॉडल आंसर्स के इक्वलेंट में आप लिख पा रहे हैं। तो ये चीज़ को आप देख सकते हैं कि जब आपका पेपर ना मॉडल आंसर्स के आसपास है, कितना मतलब इवन इफ़ यू से 40% भी अब आपके उसके पास है ना, तो यू कैन कंफर्टेबली से दैट कि हाँ आप उन लाइन पे है, यू आर इन लाइन। सो आंसर राइटिंग फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग आई वुड से
कि फिर अगेन टू इंटरप्ट आई वुड से द डिटेल्ड book list I've already given. I will even give for this channel. I would put in the description or something. मेरे इंस्टाग्राम के यूपीएससी हाइलाइट्स में भी है एंड मुदित जैन सर के ब्लॉग में भी दिया हूँ कि ये मतलब बार सेम चीज़ ही है, कुछ नया सोर्सेस नहीं है. तो if anyone have any specific questions I would answer for that. But third thing मेंस में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेंस इज ऑलवेज बिटवीन टाइम एंड क्वालिटी का ट्रेड ऑफ. जब आपके पास 7 मिनट है, 7 मिनट में आपको 10 मार्कर लिखना है 2 पेजेस का, 1/3 पेज, 1/3 पेज का, तो आपके अंदर में एक एड्रेनलाइन रश है कि आपको इंट्रो भी लिखना है, कंटेंट भी दिखना है, एक डायग्राम डाल सकते हैं, एक कुछ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एट द सेम टाइम क्वालिटी भी मेंटेन करना है, विद इन द टाइम लिखना है. ये मास्टरी आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी. So I would always say this is something which only you can only gain with the practice. और उसके बाद में हम आएंगे इंटरव्यू स्टेज. तो आई वुड ऑलवेज से कि मतलब जब आप इंटरव्यू स्टेज पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव वन-on-one इंटरेक्शंस विद द टॉपर्स, पीपल हु आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस सब्जेक्ट, कि आप इंटरव्यू में क्या गलतियां करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एक तो डैफ होता है, डैफ के जितना अच्छा आपका डैफ है उतना आपका चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टू एक्चुअली स्टीयर योर इंटरव्यू इन अ डायरेक्शन विच इज़ फेवरेबल टू यू. सेकेंड थिंग है करंट अफेयर्स. इंटरव्यू में तो करंट अफेयर्स का ही बहुत ज़्यादा रोल होता है. उस पर एक ओपिनियन फॉर्म होना होता है, बैलेंस्ड ओपिनियन होना होता है, और बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए एज एन ऑफिसर. सो दिस थिंग्स आई वुड से अबाउट द UPSC. In the meanwhile, I would think I can take few questions which have been asking from that time. तो थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ एंड उसके बाद में आई कैन इवन गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट द इंडियन पुलिस सर्विस कैसा है, कैसा होता है, क्या नहीं. एंड आई थिंक यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई वुड ट्राई टू आंसर देम, विच जो पहले भी पूछा गया है. तो इसमें आई वुड से तो क्वेश्चंस देखा जाए तो मोटिवेशन पार्ट आई हैव सेड. PYQs के एनालिसिस आई हैव गिवन यू अ वेरी डिटेल थिंग. या PYQ से क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता है, लेकिन PYQ से क्वेश्चन का थीम जरूर रिपीट होता है. थीम रिपीट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीम भी अगर रिपीट हो जाता है तो इट्स लाइक यू कैन ऑलवेज आंसर द थिंग्स, है ना. तो वही वो होता है. और डेली शेड्यूल भी मैं बता दिया हूँ, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी भी मैं बताया हूँ, है ना. तो फिर जोग्राफी एडवांस बुक other than Mazid and GC Leong for mains answer. Last time I was not able to write answers for these books. No, I think geography में आप फर्स्ट मतलब विदाउट ऑप्शनल इफ़ यू आर टॉकिंग, PMF का जोग्राफी अच्छा है किताब, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. एंड देन मैं बोलूँगा GC Leong भी आप रेफ़र कर सकते हैं, तो उससे हो जाता है. आई थिंक यू हैव टू अगेन गो बैक टू देम एंड स्टडी कि आपका कहाँ पे रह गया है. And then how have you created this entire syllabus? Veterinary science, no, sorry, my optional was anthropology. I always felt कि veterinary sciences is a very vast subject. जो I am a veterinary doctor, I always felt कि veterinary sciences बहुत ही vast subject है, उसको इतना short time में complete करना. और veterinary का जो अकेडमिशिया है इंडिया में वो बहुत ही डेवलप्ड है. And there would always be a comparison of our optional answers with the academia, which may not put us in an advantageous situation. So I always suggest my juniors to take some other optional like anthropology or something. So that is my answer for that. 7 months are enough for the prelims. Yeah, prelims के लिए तो enough है. मेंस के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप अगर हर दिन 8 to 10 आवर्स दे रहे और रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे, तो हाँ ज़रूर आप आपका हो सकता है. मॉक इंटरव्यू और UPSC इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? UPSC इंटरव्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चिल होता है. मॉक इंटरव्यू ज़्यादा सीरियस कर देते हैं और मॉक इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाता है टू द सेंस. मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉक इंटरव्यूज़ ख़राब होते हैं. मॉक इंटरव्यूज़ से 70 to 80%, 70% रियल UPSC इंटरव्यू को दिखाते हैं. बट द थिंग विथ मॉक इंटरव्यूज़ एंड मेन इंटरव्यू इज़ दैट मॉक इंटरव्यूज़ में उनके पास एक सेट डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, और वो क्वेश्चंस पूछा जाता है. बट लेकिन मेन इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपके आंसर से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर आप वो आपसे पूछ रहे कि आप कहाँ से हैं, इफ़ आई से आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज़ फेमस इन आंध्र प्रदेश. तो मैं उसमें आंसर करूँगा कुछ मैं बोलूँगा सर माई सिटी कर्नूल इज़ नोन एज अ पेलियोलिथिक साइट और समथिंग. तो फिर देन दे विल गो कि ये पेलियोलिथिक साइट्स का क्या है, पेलियोलिथिक साइट का टाइम पीरियड क्या है. तो इसका मतलब ये है कि आपके आंसर से क्वेश्चन बनता है.
तो सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज कि आप अपना इंटरव्यू को अपने मर्जी से स्टीयर भी कर सकते हो. सो ये वाली बात है. एंड देन आई हैव स्टॉप्ड एट स्टैंडर्ड बुक केस PYQ एनालिसिस तो मैं बोल दिया हूँ. या इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो अच्छा था. देयर वाज दिस Satyavati ma'am. It was very cordial and very engaging discussion. So though it was a kind of UPSC इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि एक काइंड ऑफ पैनिकनेस आ जाता है यूपीएससी इंटरव्यू में, क्योंकि दैट इज़ गोना डिसाइड योर फ्यूचर. तो उस पैनिकनेस के थोड़ा ओवरकम करके व्हेन यू गो यू कैन हैव अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन एंड इट वाज वेरी गुड एंड आई हैव इवन स्कोर्ड गुड इन द इंटरव्यू. 180 तक मिला था मुझे. 2025 प्रीलिम्स का क्या स्ट्रैटेजी सेम है. 25 हो या 24 हो, ईयर से मतलब नहीं है. कभी भी आपका स्ट्रैटेजी यही है प्रीलिम्स के लिए. हाउ टू बिगिन विथ एसेज? ब्रदर, यू हैव टू स्टार्ट बाय सीइंग द टॉपर्स कॉपीज. पहले आप टॉपर्स कॉपीज लो. आप मतलब आपको पता हो जाता है कि कौन सा टॉपर के किस में मार्क्स अच्छे हैं. उनके कॉपीज़ ले लो और उनके कॉपीज़ को पढ़ना शुरू करो, ताकि आपको पता चलेगा कि एसएस लिखना कैसा होता है, जीएस आंसर्स लिखना कैसा होता है. उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ना, तो फिर देन इट्स वेरी इजी, बिकॉज कि देन यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि मतलब कौन सा पैटर्न होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन में अपने आंसर्स लिखना चाहिए. उसी तरह आप अपना प्रिपरेशन को भी वैसे ही मैनेज कर सकते हैं. एंड देन कैसे याद रखिए डायरेक्ट PDF को विदाउट जीरोक्स नोट मेकिंग. यू हैव टू मेक अ नोट्स. नोट मेकिंग विल ऑलवेज हेल्प. CSAT का तो मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी, हाँ CSAT का ज़्यादा बार पूछा गया, तो फिर ये यही था कि आई एम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मेरे लिए मैथ्स बहुत दिक्कत थी. तो मैंने ऐसा किया था कि मैथ्स में 10 to 12 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते, मतलब सम्स होते हैं. उसमें आई वुड से कि एक में रेशियो प्रपोर्शंस है, तो एक में एवरेजेस है, तो एक में हाँ दूसरा काइंड ऑफ चीज़ें हैं. तो मैं तो उसमें ऐसा करता था कि मैं 4 to 5 ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स में सीख लेता था. उसमें मैं आई ट्राई टू गेट अ परफेक्शन, ताकि ना मुझे मतलब आई डोंट नीड टू डू ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ सम्स. थोड़े बहुत मैं ऐसे जो इजी एस्पेक्ट्स थे उसको मैं पिक कर लिया था. एंड आई यूज़ टू गेट वेल वर्स्ड कि मेरे बस 15 से 20 मैथ्स में सही हो जाए. और I used to focus on passages. I have done nearly 600 to 700 passages before I go to the main examination. ताकि पैसेज में अगर आपके 25 सही हो रहे हैं और आपके मैथ में 15 to 20 सही हो रहे, तो 40 क्वेश्चंस गेटिंग राइट इज लाइक मोर देन इनफ फॉर CSAT. देन CSAT का तो हो गया. बिलो एवरेज स्टूडेंट कैन क्लियर UPSC, yes definitely. Which standard book is good for GS4? It is Decode GS4. I have read that. लुकमान एथिक्स के साथ में आप Decode GS4 पढ़ सकते हो, Decode एथिक्स पढ़ सकते हो. वैल्यू एडिशन आप टेस्ट सीरीज से, न्यूज़पेपर से करते हैं. CAPF के लिए कुछ टिप्स. आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द CAPF एग्जाम, सो आई हैव नॉट बी अ गुड बेटर पर्सन टू आंसर दैट. आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या फ्लो चार्ट. कुछ चीज़ को आप समझा रहे हैं तो आप उसको पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए. कुछ चीज़ को आप लिस्ट आउट कर रहे हैं, जैसे एडवांटेजेस ऑफ कोल माइनिंग, तो आप उसमें पॉइंट्स लिखोगे. डिसएडवांटेजेस आप उसमें पॉइंट्स लिखोगे. लेकिन आप कुछ एक फिनोमिनन समझा रहे हो, जैसे कि पॉवर्टी के बारे में कुछ विशेष साइकिल समझाना चाह रहे हो, उसमें तुम आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कि लो इनकम होता है, लो इनकम की वजह से बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते तो उनका एजुकेशन कम होता है. इलिटरेसी फिर लो इनकम ले आता है, फिर लो इनकम की वजह से फिर, तो ऐसा एक विशेष साइकिल बनाने के लिए यू कैन यूज डायग्राम. सो इट्स ऑल अबाउट द थिंग विच यू परस्यू. उसके बाद आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, आई विल आंसर दैट. प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कैसे करें, पढ़ाई हुआ भूल जाता हूँ. रिवीजन करना चाहिए. रिवीजन का मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ.
रिवीजन को हमने एक स्ट्रैटेजी बनाए थे व्हेन आई वाज इन जामिया RCA। तो ऐसा था कि टुडे इफ़ आई एम रीडिंग समथिंग, तो इसको मैं एक 50 डेज़ के बाद में फिर से एक बार पढ़ूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं 50 डेज़ के बाद में एक चीज़ को पढ़ूँगा, तो फिर वहाँ से आई विल सॉरी इफ़ आई एम स्टडिंग समथिंग टुडे, देन आई विल रिवाइज इट अगेन आफ्टर 15 डेज़, ठीक है। तो एक संडे और एक सैटरडे वॉट एवर आई हैव स्टडीड, उसको मैं एक 15 डेज़ के बाद में मैं पढ़ूँगा। फिर वहाँ से 15 डेज़ से लेके 30 डेज़ के बाद में मैं फिर से और एक बार उसको पढ़ूँगा, एक संडे या सैटरडे। यहाँ पे अपना क्या हो रहा है कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी से ये स्लोली लॉन्ग टर्म मेमोरी को ट्रांसिट होने का फेज़ है। 30 डेज़ से लेके 45 डेज़ तक मैं फिर 45 डेज़ के बाद में उसको एक बार पढ़ूँगा। नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली कम अंडर माई लॉन्ग टर्म मेमोरी। 45 डेज़ के बाद में आई विल ओनली रिवाइज इट वंस बिफोर द एग्जाम। तो इस तरह से जब आप ना उसको जब वो वोलेटाइल होते जाता है, तुरंत आप पढ़ लोगे, फिर वो वोलेटाइल होने का चांस होता है, फिर आप उसको पढ़ लोगे तो वो फिक्स होता है। उसके बाद में है एसेस में तो आपको न्यूज़पेपर से वहाँ से आइडियाज़ बना के रखना है, अनेक्डोट्स बना के रखना है, पहले ही डेटा बना के रखना है, तो वैसा वो अच्छा हेल्प करेगा। For anthropology book list also, you can always refer the book list which I have listed in Instagram and also blogs, and even for this channel also I will give the description. या ट्रेनिंग के बारे में मैं बताऊंगा, या मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में तो बता दिया हूँ, या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में आई विल टेल। कैन यू प्रोवाइड योर नोट्स? या मेरा नोट्स का मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो भी है वो दैट आई हैव शेयर्ड इन द लिंक। यार न्यूज़पेपर तो आई वुड से कि whenever you start studying and reading a newspaper, you should always understand कि ये किस एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस में आने वाला है। जैसे आप कुछ अब अभी जो US इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक पार्टीज़, ठीक है, तो ये सब पढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है US पॉलिटिकल सिस्टम वर्सेस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मेंस के एस्पेक्ट में, और US का जो प्रेसिडेंशियल और इंडियन प्रेसिडेंशियल का डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे टाइम पे फ्रेंच और इंडिया का डिफरेंस पूछा गया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। सो ये एस्पेक्ट आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप किस पार्ट ऑफ सिलेबस में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एक दो चीज़ें मैंने पर्सनली फॉलो किया था। कट द क्लटर है, एंड देन द फर्स्ट पोस्ट में जो न्यूज़ होता है, कट द क्लटर में मुझे बहुत कुछ मतलब ओपिनियंस मिल जाते थे, दो आई हैव यूज्ड इट फॉर द इंटरव्यू फेस, बट लेकिन मुझे वो कुछ अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन देने में तो काम आता था। कोचिंग लगाना ज़रूरी नहीं है, या ऑनलाइन यू कैन डू। I have not attempted any other exam other than UPSC. Though I have given स्टेट PCS का प्रीलिम्स दिया था, लेकिन उसका जो मेंस का एग्ज़ाम के पहले मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया था, तो आई हैव नॉट गिवन मेंस। इंग्लिश मीडियम से करूँ या हिंदी मीडियम से करूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हिंदी मीडियम से भी आप कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव चांस टू डू इट इन इंग्लिश, देन यू कैन डू इट इन इंग्लिश। Last trying to get in IPS OBC, I have to check it, because I think for general it was 250 something. या 1 year करंट अफेयर्स विल बी सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स। हैंड राइटिंग का मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हैंड राइटिंग से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि, लेकिन घटेंगे। राइटिंग अगर लेजिबल नहीं है तो फिर देन यू मे फेस अ सिचुएशन वेयर कि आपका जो आप लिखे अगर वो समझ नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर विल नॉट टेक एनी एफर्ट टू रीड इट, तो वो वाला एस्पेक्ट हो जाता है।
या उसके बाद में जो जो पीपल आर आस्किंग मी कि आंसर को कैसा फ्रेम करना चाहिए. सो आई वुड से आंसर को फ्रेम करने के एस्पेक्ट में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला पहला अपना प्रायोरिटी होना चाहिए डिमांड को हिट करना. सो व्हेन यू हिट द डिमांड, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंग्लैंड टू बिकम अ कॉलोनियल सुपर पावर, तो आपका फोकस पूरा यही होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन में क्या ऐसी चीज़ आई है जो वो लोग ना कॉलोनियलिज्म के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साइड गए थे. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मशीनरी गुड को बनाया गया था जिसकी वजह से उनको एक मार्केट चाहिए था जहाँ पे ये सारे चीज़ों को वो बेच सकें. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा रॉ मार्केट का डेफिसिट बना लिया था कि रॉ मार्केट की ज़रूरी थी, चीप रॉ मटेरियल की ज़रूरी थी, जिससे वो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट्स बना सकते थे. तो ये एस्पेक्ट्स ना उनको कॉलोनियल स्टेट्स के साइड उनको ड्राइव किया है, या कॉलोनियल ट्रेड उनका जाने के लिए फोकस किए. सो ऐसा यू हैव टू हिट द डिमांड फर्स्ट. सेकेंडली यू हैव टू डिसेंटली इंट्रोड्यूस कि क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि यू हैव टू डिनोट द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड द कंटेक्स्ट. और आपके कंटेंट इट शुड डायरेक्टली गो टू द it should directly go to the demand. सो देन आप एक एलिमेंट ये भी डाल सकते हो कि एसोसिएटेड चीज़ें भी लिख सकते हैं, एसोसिएटेड चीज़ें भी आप उसमें लिख सकते हैं. तो फिर थर्ड पॉइंट यही होगा कि एक डिसेंट ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए. माय ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी. या कमिंग टू द ट्रेनिंग इन लबासना तो 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है. तो उसमें तो आपको बेसिक्स ऑफ बीइंग एन ऑफिसर सिखाया जाता है. वहाँ पे एक विलेज विजिट होती है, इंडिया डे होता है, विलेज फीट होता है, और हिमालयन ट्रैक होता है. एक काइंड ऑफ एक्सपोजर है नेचर, और ऑफिसर्स की एक कैमेडरी है. उनकी जो एक फ्रेटर्निटी है जहाँ पे मतलब ऑफिसर्स तुम कैसे इंटर ऑफिसर्स को कैसे तुम उनको लेवरेज कर सकते हो बाद में सर्विस में, ये चीज़ें सिखाया जाता है. तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मसूरी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट मसूरी बहुत ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे आप बहुत मतलब डिफरेंट यू गेट टू मीट नियरली 500 to 600 सिविल सर्वेंट्स देयर. तो इट्स मोर ऑफ एन इंट्रैक्शन, मोर ऑफ अ लर्निंग द बेसिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेट. तो लवासना इज़ अ ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस. NPA इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनरी आई वुड से प्लेस. NPA में जितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक इंडिविजुअल का और एक ऑफिसर का, आई डो नॉट थिंक कोई भी कहीं पे भी ऐसा कुछ प्लेस नहीं हो सकता है जहाँ पे आपका इतना इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जो लोग कभी आउटडोर के रहे नहीं हैं, जो लोग कभी क्या बोलते हैं कि कभी उनका आउटडोर के लेके लीनिंग नहीं है, वो लोग भी वहाँ पे फायरिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग होता है, स्विमिंग 40 किलोमीटर्स विथ 25 केजेस वेट को लेके 40 किलोमीटर के रूट मार्चेस होते हैं, 16 किलोमीटर रन्स होते हैं, 7 डेज़ का फॉरेस्ट मॉड्यूल होता है. फिर वहाँ पे हम लोग रॉकेट लॉन्चर फायर करने को मिलता है. बहुत सारी चीज़ें मतलब एडवांस्ड वेपन्स फायर करने को मिलते हैं. 51mm मोटार्स कहे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आप कर सकते हैं. और NPA मोस्टली आपके अंदर एक डिसिप्लिन देता है. इट इज़ अ जर्नी वेयर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिविलियन टू अ सिविल सर्वेंट, दैट टू इन जनरल इट इज़ अ पुलिसमैन बनने के लिए जो भी क्वालिटीज़ चाहिए ये सारे चीज़ें NPA में इम्पार्ट किए जाते हैं. इट्स एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग टू सी द ट्रेनिंग. अभी ट्रेनिंग के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी है यूट्यूब में, उसको भी आप देख सकते हो. सर्विसेज IAS IPS कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट द सर्विस विच यू टेक, इट्स अबाउट द आप कौन से सर्विस के लिए सूटेबल है. IAS ऊपर है, IPS ऊपर है, IFS ऊपर है. इस डिस्कशन से भी रिलेवेंट डिस्कशन वो होता है कि आप कौन से सर्विस के लिए सूटेबल है. आपको लग रहा है कि आप डिप्लोमेटिक कोशेंट आप में है, जो आप
आपको लग रहा है कि आपके आपके अंदर एक डिप्लोमेटिक कोशेंट है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, तो देन यू शुड बी जॉइनिंग फॉरेस्ट सर्विसेज. इफ़ यू हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव कोशेंट यू कैन जॉइन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. अगर आपके अंदर लग रहा है कि आप एक फील्ड पर्सन है, आपको पुलिसिंग से अच्छा लगता है, आपको यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, आपको डिसिप्लिन अच्छा लगता है, फोर्स डिसिप्लिन अच्छा लगता है, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन पुलिस सर्विसेज. तो सेम विद अदर थिंग्स, रेवेन्यू एंड एनीथिंग. आपको आपके अंदर का लीनिंग के हिसाब से आप सर्विस को चुन सकते हैं. Consistency, तो how to maintain a consistency, I would say there should always be an internal motivation factor in you. If not UPSC, what for I am made. तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप अगर यूपीएससी के लिए आप इतना एफर्ट डाले हैं, इतना पैसा खर्चा किए, इतना टाइम टाइम पैसे से भी ज़्यादा महंगी चीज़ है टाइम. आप इतना टाइम अगर यूपीएससी के लिए दिए हैं तो यू शुड एंड or you should come out with a successful something, gaining something. But I will not say कि everyone who gets into this cycle will clear the exam, but at least there should be some kind of validation to your life. तो फिर I would always say कि वो motivation आपके अंदर always रहना चाहिए. And मतलब I would say from the stage of preparation only you should always feel yourself as an officer. ये ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिसर के प्रिविलेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऑफिसर के प्रिंसिपल्स आपके अंदर होना चाहिए. यू शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड हैव अ हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी. आपके बात करने का तरीका भी यही होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हो तो यू मीन इट. सो इस टाइप में आपके अंदर से एक एटीट्यूड जब आएगी तो प्रिपरेशन विल फॉल इन प्लेस एंड इवेंचुअली यू विल गेट सेलेक्टेड. My plan B, if not UPSC, was some state public services because I wanted to be, especially if I have to say, I actually wanted to become a policeman. So उसमें मेरे को लग रहा था कि if I am not able to clear IPS, then I would have joined DYSP and then again I would have given this exam again and again. तो मुझे यूनिफॉर्म को लेके पुलिस फोर्सेस, पुलिस पर्सनल को लेके आई ऑलवेज हैड अ पैशन. So that passion has drove me to coming into the police service. Yeah. English communication matter करना, अगर इफ़ योर मीडियम इज़ इंग्लिश इन इंटरव्यू देन मैटर करता है, लेकिन बाकी तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली तो मैटर नहीं करता है इंग्लिश कम्युनिकेशन. बाकी चीज़ें ट्रेनिंग के बारे में आई हैव टोल्ड, बिकॉज द प्रिपरेशन आई हैव टोल्ड. You don't need to be in Delhi or go to some place to prepare, because this is a generation of democratization of the information, जहाँ पे आप इंटरनेट के ज़रिए से और इन सब से आपके पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है, आपके फुट स्टेप्स पे है. तो कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि आप एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है तभी आपका प्रिपरेशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. सैलरी एंड पर्क्स आफ्टर द सर्विस. सैलरी तो मतलब इट्स अ लेवल 10 स्केल सैलरी होती है. पर्क्स में तो आई वुड से इफ़ इट इज़ मोटिवेटिंग इन दैट एस्पेक्ट, आई वुड ऑलवेज से कि आपको एक घर मिलती है, गाड़ी मिलती है, आपके सारे जो भी बेसिक चीज़ है दोज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बीइंग एनी सिविल सर्विस. See, for the point of feeling low and up in the preparation, I would say कि यूपीएससी का प्रिपरेशन ही ऐसा है जिसमें ऑलवेज क्रेस्ट एंड ट्रफ होंगे, अप्स एंड लोस होंगे. तो हम लोग ऐसा एज अ फ्रेंड्स ग्रुप जब प्रिपेयर कर रहे थे, हम लोग यही सोचते थे कि ये अभी मेरा अप फेज़ है, अभी मुझे पढ़ने का मोटिवेशन है, तो मैं आज ना 8 घंटे में बहुत ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक लो फेज़ भी आने वाला है. जैसे कि आप एग्जैक्टली मेंस एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद में 2 महीने होता है मेंस का रिजल्ट के लिए, वो थोड़ा लो फेज़ होता है. लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि एवरीवन विल बी एक्सपेक्टिंग देयर नेम इन द इंटरव्यू लिस्ट.
और जो अच्छा नहीं लिखा होता है उसको भी लगता है कि मेरा नाम तो नहीं आएगा, तो होप थोड़ा कम होता है, तो लो फेज़ होता है। ऐसे लो फेजेस को कंपेंसेट करने के लिए जो मोटिवेटेड फेजेस होते हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या वो उस फेजेस में अपना नोट्स बना लो और लो फेजेस में आप वो नोट्स को रिवाइज करो बस। तो ऐसे अपने हाई एंड लो फेजेस को बैलेंस करना चाहिए। हाई फेजेस जैसे होते हैं कि तुरंत आप एक प्रीलिम्स फेल हो गए, आप थोड़ा बहुत सैड फील किए, एक जगह नहीं चेंज किए, नया जगह चले गए, और आपके अंदर एक इंटरेस्ट आया है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट आया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी तो मैं इस बार एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। तो ऐसे ये अब जो फेज़ है, ये फॉर एग्जांपल समझो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जून में हो जाता है, तो जुलाई तक लोगों को समझ में आ जाता है कि उनका इस बार निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और उस टाइम पे लोग बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं। इवन इफ़ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा मेंस के लिए। नॉट क्लियरिंग ऑल्सो यू विल हैव अ मोटिवेशन, आप नया लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, प्लेस ज्वाइन करोगे, नए बुक्स लोगे। तो इस फेज़ में आपको बहुत खींचना है, जैसे कि आप बहुत कुछ नोट्स बना लो, अपना इजी मैपिंग मेथड्स कर लो, सारे चीज़ें कर लो, ताकि एक जो लो फेज़ आएगा मेंस के पहले या मेंस के तुरंत बाद, उस फेजेस में आप ना उसको रिवीजन करने का रख लो, या आप उसको उस फेजेस में टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है ना। दैट कीप्स यू ऑन मूविंग, बिकॉज आई वुड नॉट से कि जो लोग एग्ज़ाम क्लियर किए उनका ऑलवेज हाई फेज रहा है, ऐसा किसी का भी होता नहीं है। सबके अप्स एंड लो फेजेस होते हैं, तो उसी हिसाब से अपना भी जो फेज़ को समझना चाहिए एंड उसके हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए। वी शुड नेवर बी फॉर फ्रॉम द रियलिटी। तो this I would say for up and low phases of preparation. uh, I have not taken any coaching for optional, neither GS. I was in Jamia RCA New Delhi, Jamia Millia Islamia. So वहाँ से मैं एक प्रिपरेशन इकोसिस्टम थी वहाँ पे, ऐसा कोचिंग कुछ नहीं था। तो मेरा बेसिक प्रिपरेशन वगैरह वहीं से हुआ है। आई वुड ऑलवेज थैंक माई seniors there who happened to be my batchmates also in IPS। तो वो बोल सकता हूँ। Which YouTube channels are good for UPSC? I have referred this Cut the Clutter, एंड देन फर्स्ट पोस्ट से न्यूज़ के लिए मैं पढ़ा था, और मैं जोग्राफ़ी के लिए रास्तानिल सोलंकी मैम, रास्तानिल सोलंकी फैकल्टी का मैं ये देखा था। एंड देन आई हैव रेफर्ड स्लीपी क्लासेस फॉर एंथ्रोपोलॉजी, ऐसा कुछ ऑड एंड डाउट आई हैव रेफर्ड, बट आई हैव नॉट कम्प्लीटली दिस। हाउ टू क्वालिफाई फॉर RCA हैज़ देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है RCA का, आप उसका नोटिफिकेशन फॉलो कीजिए, उसका एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। Then I think I have decently answered most of the questions that I've been asking regarding the UPSC. Apart from this, if there is something, I can always be a person who would be helpful to answer you. You can always reach me in my Instagram handle. It is Habib Sheikh _IPS. You can always reach me there फॉर एनी थिंग। एंड मोस्टली मैं इस वाले वीडियो में हो या पहले के जो जो ब्लॉग्स हैं, वीडियोस है, आई ट्राई टू बी ऑफ सम हेल्प टू द एस्पिरेंट्स, बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम द स्टेज ऑफ एस्पिरेंट। सो आई वुड से कि वहीं पे आई वुड बी हेल्पफुल देयर, कम अप विद गुड क्वेश्चंस देयर if you're having a genuine thing. If you're asking me some question, please be specific कि if you're asking some specific question, then I would be a faster person to reply there. But if you're telling me कि sir give me some tips on a general scale, then I would always say कि you can always refer the videos like this. So that is the mandate for the day. So I think I have decently addressed and did the justice to this session. Oh, and I guess I will take a leave, and I wish all the best for all the aspirants who are preparing for the 2025 examination of UPSC, CAPF or any other examination. I wish all the best and good luck, and count me in for any help you need in the future. Thank you.